A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the most important programs of C languages which are asked in the exams in multiple times. Okay, so today, first of all, we are creating a program of a right angle triangle with star pattern. Okay, हमको एक इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म के अंदर स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करवाना है. स्टार पैटर्न इन द सेंस, जैसे सबसे पहले अगर आपके पास एक स्टार प्रिंट होके आना चाहिए, देन नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके पास 2 स्टार्स प्रिंट होके आएंगे, देन इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव 3 स्टार्स, देन 4 स्टार्स, and in the last line we have 5 stars in our board. Okay, आपको इस तरह से एक पैटर्न प्रिंट करवाना है. तो आप इसको देख सकते हैं, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल टाइप पैटर्न दिखेगा. ठीक है ना. तो अब सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो मेरी फर्स्ट लाइन है इसके अंदर मैंने 1 स्टार प्रिंट करा है, सेकेंड लाइन के अंदर 2 स्टार्स, देन थर्ड लाइन है 3 स्टार्स, फोर्थ लाइन है 4 स्टार्स, एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ लाइन है 5 स्टार्स. ओके, सो अब ये देखिए, इसको हम कहते हैं रो. ओके, और दिस इज कॉल्ड आर कॉलम. तो हम जो इसके अंदर पैटर्न प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें रोज और कॉलम्स की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, उनकी हेल्प से एक प्रोग्राम बनता है. ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहली बात आपको क्या करना है, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देनी है. दैट्स आर stdio.h एंड अनदर वन इज हैज इंक्लूड connew.h. ओके, वी हैव टू डू दीज, include these header files mandatory in each and every C program. Okay, so after that what we have to do, we have to create a main function. So here I have to create a main function with data type void main. Okay, so now in that main function we have to do a print stars in row and in columns. Okay, तो आप देखिए यहाँ पे रोज कितनी है, 1 2 3 4 5. तो हमें क्या करना है, एक तो 5 रोज का एक बनाना और एक 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, लास्ट कितना है 5 कॉलम्स है, तो उनका हमको एक पैटर्न बनाना है. ठीक है, तो अब रोज और कॉलम है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो 2 वेरिएबल्स है वो कोई भी ले सकते हो. अगर आप चाहो तो रो और कॉलम्स भी ले सकते हो, आप चाहो तो IJ अपने जो इच्छा हो, मतलब ABCD कोई भी ले सकते हो. ठीक है ना. तो मैं आपको यहाँ पे इसका मेन फंक्शन वापस बनाता है इस प्रोग्राम को. देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दिया आप लोगों ने. ठीक है ना, ये सेम है जब मैंने नीचे लिखी थी connew.h. देन हमने क्या करा, मेन फंक्शन क्रिएट करा. इन मेन फंक्शन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट 2 वेरिएबल्स which are used for our loops. Okay, so here I have to use 2 variables that are int row and int column. Okay, here column is denoted by col. This is our variable. Okay, then after that what we have to do, we have to print our first star. Okay, so for that we use for loop in that program. So we already know about the syntax of for loop. For first of all we are use that row function. Row is equals to 0. Okay, you have to start that row with 0 or 1, it's on you. Okay, row is equals to 0, then row is less than 5. Okay, because we have to take 5 rows here, so my loop is start and till 5. Okay, then after that
increment or decrement, so I have to increment here, then row. In that for loop, if I want to write printf and I want to print only star, so we print that star, okay, and we have to close that for loop here and get ch function. So if we do that, what happens, देखते हैं. सबसे पहले रो की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पे चेक करेगा, 0 is less than 5, condition is true, enters in that printf and it prints first star, okay. After that, when this for loop is closed, what happened, it increases rows value to 1. So here now 1 is less than 5, condition is true, printf star. Then condition is again incremented by 1, it is 2, 2 is less than 5. What we have to do, we have to print star, So you can see that this output and this output is very different. We want to print only 1 star in the one line, but what happens here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको प्रिंट तो एक ही करना था, बट एक ही लाइन में 3 प्रिंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास जो लॉजिक है ये तो नहीं लगेगा, ठीक है ना. हमको क्या करना है, एक लूप, एक रो के अंदर एक ही प्रिंट करवाना है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, गलत. तो इससे ही कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप के अंदर प्रिंट एफ नहीं प्रिंट करेंगे, हम क्या करेंगे, जे ले लेंगे. आपको क्या करना है, ये जो रो है, अब इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम प्रिंट की वैल्यू हमने क्या करी, 0 से इनिशियलाइज कर दी. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलन को चेक करवाएंगे रो से, ठीक है ना. अब ये जो कॉलन है ना हमारा डिपेंड है ऑन द रो, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलन की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, condition is true. What it means? It means it enters in that for loop and here it can print star, okay. So here we have in output we have got our first star, okay. After that anything written, no, it means we come back to that colon plus plus. Now what is the value of colon, see it is again 1, okay. Here you have to check the condition, 1 is less than equals to 0, condition is false, okay. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इस इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन. तो बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी अब नेक्स्ट जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर आप न्यू लाइन के लिए प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैकस्लैश एन लिखना पड़ेगा, इट इंडिकेट्स न्यू लाइन, ओके. तो अब सीधा कर्सर आपका कहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, अब क्या होगा, रो की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस होगी, ठीक है ना. इसका मतलब रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा रो की वैल्यू में. रो की वैल्यू इज नाउ 1, ओके. सो हियर वी हैव टू चेक अगेन एंड इट इज ओनली 0 अगेन, वी हैव टू राइट इन दैट फॉर्म. Row is 1, 1 is less than 5, condition is true, it again enter in that for loop. Here first of all colon is 0, 0 is less than equals to 1, condition is true, again it have to print 1 star, okay. So here we got our 1 star. After that what happened, again colon plus plus, it means we have to increment the value of that colon, it is 0, it is again 1. Here we have to check the condition, 1 is less than equals to 1, condition is true, again it enters in that value in for loop and it has print star. So here I have get another star, okay. After that we have to increase again that colon value, that's true, 2, 2 is less than equals to 1, condition is false. तो इस लूप से टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन है, इसका मतलब सीधा वापस इसको कहाँ जाना है, आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाना है, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, वापस हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा रखा है ना, ये बंद हो रहा है जो, तो इसका ये किसका है, इस रो का है, ठीक है ना. तो इसका मतलब हमको क्या करना है, रो प्लस प्लस, देन रो इज 2, ओके. इट अगेन
check this condition 2 is less than 5, condition is true. Okay, it enters in that value. Here colon is 0, 0 is less than equals to 2. Okay, condition is true, it enters here and it prints our first star. Okay, after that it increases the value of colon to 1. 1 is less than 2, condition is true, it again print another star. Okay, after that it increase the value of colon to 2 here. Okay, condition is again true, it again prints that star. Okay, after that when colon again incremented by 1, it means its value is now 3. Okay, 3 is less than 2, condition is false here, so it exit that for loop and enter in that here printf backslash and it again go to a new line. Okay, इस तरह से आपके फॉर लूप्स रो और कॉलम के चलते रहेंगे और आपके पास एक इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल का स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा. ओके, आप इसको ट्राई करिए, बहुत इजी है. ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक के साथ 2 प्रोग्राम्स बताता हूँ. ठीक है, इसके अंदर हम एक चीज़ और कर सकते हैं. अगर आपको बोल दे स्टार की जगह जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्वेश्चन है वो है कि आपके साथ इस तरह से आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर आपको बोले इस तरह से आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, जो आप प्रिंट एफ के अंदर स्टार लिख रहे हो ना, यहाँ पे आपको आई की वैल्यू लिख देनी है. ओके, उस वक्त आप क्या करोगे, जो आपकी रो की वैल्यू है आई, जो भी आप लिखोगे उसकी वैल्यू लिख सकते हो आप. ठीक है, आप ये एक बार ट्राई करके देखें. अगर आपसे नहीं हो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका भी प्रोग्राम बना के बता दूंगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.